to the unit optics, and as you can see here we have started the fourth chapter of the unit optics, that is optical instruments. So today we are starting with the fourth chapter of optics, that is optical instruments. In this chapter we will study about the optical instruments that we have, and first optical instrument is simple microscope, and this simple microscope is also known as magnifying glass. What is simple microscope or magnifying glass? That means simple microscope or magnifying glass, हमारे पास we use simple microscope or magnifying glass to see the images of very tiny objects. जो small objects होते हैं उनको magnify करके देखने के लिए we use simple microscope. That's why the glass is known as magnifying glass, because जो objects हैं that are very small objects, or by using the simple microscope the image of these tiny objects is virtual, erect and magnified image is formed so that we can easily see the objects. These are mainly used by the jewelry makers or used in the science lab, mainly by the students, to see the or to note down the reading of vernier calipers like this. So you can see how small is the object, and of that small object, tiny object, the image formed by this microscope is erect, virtual and magnified image is formed so that we can see clearly the image of the tiny objects. So to magnify the images of very tiny objects we use simple microscope, and that's why this microscope is also known as magnified glass, because ये जो small objects हैं जिनको हमें clearly देखना without microscope difficult है, तो ऐसे objects को देखने के लिए जो हम microscope use करते हैं that is known as simple microscope or known as magnifying glass. तो देखो होता क्या है, magnifying glass और simple microscope consist of a convex lens. First of all एक convex lens होगा इसमें, and you know optical center of the convex lens is given as C. Optical center से अगर हम एक line draw कर दें on both the sides, this is known as principal axis. And when the image of the object, tiny objects, is magnified image, here the case, that means the object जो रखा होगा that is very close to the you can say human eye, or you can say object is placed very close to this convex lens. So if suppose this is optical center and this is focus, then object is placed between optical center and the focus. So here AB object is placed very close to the lens, and you can say जब हम अपनी eyes में जब लगा के देखते हैं तो this is very close to the human eye. Object is placed very close to the convex lens between optical center and the focus. और आपको पता है जब ये case होता है कि when object is placed between optical center and focus, जो image form होती है वो virtual form होती है, erect form होती है और magnified image form होती है behind the object. तो देखो first ray from the object will go like this and it will pass through focus. So this point is known as focus and this is the ray. Second ray from the object will pass through optical center and it will go undeviated. And here you can see that these two rays will not converge at this part, but we would produce these rays backside and the image will be formed somewhere at this point behind the object. The image वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, आप देख सकते हो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है, बड़ा साइज है. तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. तो क्या बता सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे कि जो इमेज फॉर्म हो रेटिना के ऊपर वो
इरेक्ट हो, बड़ी हो, मैग्नीफाइड हो, ताकि हम इजीली उसको क्या कर पाए, देख पाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. This is the diagram for simple microscope. Simple microscope consists of a converging lens. The object is placed very close to the converging lens. That means between optical center and the focus. When object is placed between optical center and the focus, the virtual, erect and magnified image is formed A dash B dash. अब हमें ये देखना है कि कैसे ये जो इमेज है वो फॉर्म हुई है, और उससे पहले हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखनी है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने मैग्निफिकेशन निकाला था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. आप इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं. एंगुलर मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. और क्या होता है ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और नाउ नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज डिनोटेड बाय एम. अब स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है ये है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, एंड जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हियर द इमेज is formed at least distance of distinct vision. And students, आपको पता है least distance of distinct vision for a normal person or normal human eye is 25 centimeter. That means human eye से 25 सेंटीमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. दैट मीन्स जो ये इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं D इज इक्वल टू V. V इज इक्वल टू D. दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कहाँ पे हैं, दोनों ही विद इन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है. ये कंडीशन है फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप. की सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज वेरी क्लोज टू द कन्वर्जिंग लेंस, एंड इमेज इज फॉर्म्ड विद इन द एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल हेल्दी आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है. तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज U. अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. अब ये क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल formed by the image at the eye to the angle formed by the object at the eye. मतलब जो ये इमेज है वो अगर यहाँ पे हम सपोज यहाँ से हम देख रहे हैं, तो दिस इज द आई. तो जो इमेज है वो आई के ऊपर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन आई के ऊपर कितना एंगल फॉर्म कर रही है. तो सपोज उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, ये आपकी इमेज है. तो इमेज तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरी जो आपकी आई है दैट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है इमेज के लिए, तो इमेज आपका एंगल फॉर्म कितना फॉर्म कर रही है, बीटा. अब ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एट द आई, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उठा के यहां डिस्प्लेस कर दिया, तो दिस पॉइंट इज नोन एज A1 एंड दिस इज B डैश. तो अब ये जो एंगल फॉर्म होगा बाय द ऑब्जेक्ट एट द ह्यूमन आई, इसको हम नाम दे देते हैं कितना, अल्फा. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए हो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया. अब समझ लेते हैं कि यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
या ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ह्यूमन आई के ऊपर जितना भी एंगल फॉर्म करेगा दैट इज अल्फा। अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई and beta is the angle formed by the image at the eye. Now we have to take the magnifying power, that is m. This magnifying power is the ratio of angle formed by the image at the eye to the angle formed by the object and object जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज अल्फा। सो कैसे लिखेंगे, m is the magnifying power, sorry not magnifying power, magnifying power of simple microscope. It defined as the ratio of angle subtended by the defined as the ratio of angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by the object at the eye. ओके, जो इमेज है वो आई के ऊपर जो एंगल सबस्टैंड कर रही है दैट इज बीटा और ऑब्जेक्ट जो एंगल सबस्टैंड कर रहा है दैट इज अल्फा। सो m कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा। दिस इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और जब मैंने बताया था कि जब एंगल्स आपके पास स्मॉल एंगल्स हो जाते हैं इन दैट केस बताया था मैंने आपको हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ बीटा एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा। Now we would find out the value of tangent of beta and tangent of alpha. अब tangent of beta के लिए कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे tangent of beta के लिए ABC। ABC में tangent of beta क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से, tangent of beta में परपेंडिकुलर इज AB, बेस कितना है, बेस इज BC। ओके, अब tangent of alpha में क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फा मतलब ये एंगल हमें निकालना है। इसके लिए वी कैन टेक द ट्रायंगल A1B'C, A1B'C। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, A1B' ओवर B'C। दोनों की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, AB बाय BC। ओके, एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, A1B' ओवर BC। तो होगा क्या, BC ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज A1B'। स्टूडेंट्स कैन आई रिप्लेस A1B' बाय AB, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं इसको AB से। अब AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसल आउट एंड जो मैग्नीफाइंग पावर होगी M इज इक्वल टू वो होगी BC ओवर BC या B'C, B'C ओवर BC। ओके, ये हमारे पास आ गई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, M इज इक्वल टू B'C ओवर BC। अब देखो स्टूडेंट्स B'C क्या है, B'C ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस इज नोन एज V, और ये इन फ्रंट ऑफ लेंस है। दैट मीन्स अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लू तो लेफ्ट हैंड साइड में है, सो माइनस ऑफ V। एंड व्हाट इज BC, BC इज U, तो माइनस ऑफ U। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन एज V बाई U। ओके डन। अब व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला is given as 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ V से अगर डिवाइड कर दूं, on dividing both sides by V, we would get V by V minus V by U is equal to V by F। ये हो जाएगा 1 माइनस V बाई U इज इक्वल टू V बाई F। और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस V बाई U को आई कैन राइट M एंड दिस इज इक्वल टू V बाई F।
अब यहाँ से अगर मुझे मैग्निफिकेशन पावर अगर निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालनी है, तो वो क्या होगा, टेक m टू दिस साइड, m इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। m इज इक्वल टू यहां से 1 माइनस m इज इक्वल टू v बाई एफ, v बाई एफ, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m, तो ये होगा m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ, यही होगा। और वी कैन रिप्लेस v एज माइनस ऑफ d। मैंने बताया था इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो इन प्लेस ऑफ v वी कैन रिप्लेस माइनस ऑफ d, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो m वुड बिकम 1 माइनस ऑफ d ओवर f, and m magnifying power would become 1 plus d by f. So this is the final magnifying power of a simple microscope, and that is given as m is equal to 1 plus d by f. This is the magnifying power. अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि मैग्नीफाइंग जो पावर है, हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो लार्ज से जो इमेज फॉर्म हो रेटिना के ऊपर, वो मैग्नीफाइड हो, लार्ज इमेज फॉर्म हो। दैट मीन्स we want the magnifying power of an optical instrument to be enhanced, to be increased। मतलब हम ऐसा क्या करें कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, लार्ज करके दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 तो यहाँ पे है, d बाई एफ का रेशियो है जो जिसके ऊपर क्या करेगा, मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करेगी। अगर जितना डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो अगर हम फोकल लेंथ अगर क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो इन दैट केस अगर डिनोमिनेटर अगर स्मॉल होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टू एनहेंस द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो दिस इज द वन कंक्लूजन दैट कैन यू कैन टेक टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स द लेंस शुड बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अब स्टूडेंट्स ये है कि हम ये जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो मेनली जो आपके ज्वेलरी मेकर्स हैं, आपके जो ये जो वॉच प्रिपेयरिंग वाले जो वॉच का जो काम करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ये ग्लास यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि आपको पता है जो हैंड वॉच है इनके पार्ट्स बहुत स्मॉल होते हैं, उनका इमेज मैग्नीफाई करने के लिए जो इमेज है वो बड़ी बने, लार्ज बने ऑन द रेटिना, उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। और एग्जाम्पल ले तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी साइंस की लेबोरेटरीज में जो आपके वर्नियर्स कैलिपर वगैरह है उनकी रीडिंग्स लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है और ब्राइट इमेज फॉर्म होती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। इन द नेक्स्ट क्लास we would understand the compound microscope. This is simple microscope. Next time we would understand the compound microscope. Thank you.